let's start. Welcome to all of you. Welcome to Sai Study Classes. Myself Bhavani and I hope you are well and ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ସୁସ୍ଥ ଥିବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି କରୋନା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ସୋ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିକେ ମେଣ୍ଟର ତ ଫର୍ଷ୍ଟଲି କହିଦେଉଛି ମୋର ସଣ୍ଡେ ଟୁ ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଜିକେ ସିରିଜ୍ ଆସୁଛି ଜିକେ ଆଣ୍ଡ ଜିଏ ବେସିସ୍ର ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟପିକ୍ସ ନେଉଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲସେ ଡିଟେଲିଂ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଗୋଟେ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟପିକ୍ସ ୱିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ରହିବ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇଥିଲି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଲାବୋରେଟ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ଆଜି ସେଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଭଲ ରହିବ ବା ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଭଲ ରହିବ ତ ଆପଣମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଏମିତିଆ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା SSC ସାଇ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍ଙ୍କର ଜଣେ ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବି ଏଜ୍ ଏ ପୁରା ଥିଓରି ୱାଇଜ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଦେନ୍ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁ ଯେଉଁ SSC CHSL CGL ଧରିନିଅ MTS ଧରିନିଅ NTPC ଧରିନିଅ ଗ୍ରୁପ୍ D ଧରିନିଅ ଯାହା ବି ଧରିନିଅ ତା ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ ଯେତିକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହୁଛି 25 ମାର୍କର ହଉ 30 ମାର୍କର ହଉ 40 ମାର୍କର ହଉ କି 20 ମାର୍କର ହଉ ଇଭେନ୍ ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲିଂ ଆଣୁଛି ବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଓକେ ଦେନ୍ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ସରୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତ ଫର୍ଷ୍ଟଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ପଠାଇବୁ ବା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ତ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଟପିକ୍ ନେଇଛି ତ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସ ଯେକୌଣସି ଇଭେନ୍ ତୁମେ ସିଏ ମାନେ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ବି ବସ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ PCSରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ବି ବସ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ ବାହାରକୁ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଏନି ହଁ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ବେସିସ୍ ମୁଁ କହିପାରୁନି ବଟ୍ ଏହା ହିଁ ରୁହେ ଦେନ୍ ଦେଖ ନା ଆମର କ'ଣ ନା ଟପିକ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ଠୁ ଓକେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ India's position in various parameters, their important dates and why they are observed or theme of the day, India and world cinema about the movie and song which are awarded in the last year, scheme of the government, other states and their policy, center and states and their new educational policies, scheme and current initiatives, static GK with related to current and concept, all of the world and India's main headquarter and their new policy, India and other country bilateral relation okay bilateral relation तांकर सहित कौन रोची field and any field of political affairs and issue okay then modern history medieval history सब कहली ancient history social arts and culture of India geography Indian polity economy science and tech and general science and everyday basic science and mythology रो गोटे क्वेश्चन रोची धर जो राम कौन जुगरे थिले बा महाभारत कौन जुगरे हितला तो रावण कौन जुगरे माने तांकर आधिपत्य थिला तो एमतिया मूवी क्वेश्चन कौन पाई उठी ना मु रिसेंटली CHSL गोटे एग्जाम देथिली रिसेंटली माने तो नुहे 2019 में सेट देथिली मते क्वेश्चन आस्थिला हु इज द डायरेक्टर ऑफ बाहुबली ओके तो एई क्वेश्चन आस्थिला तो गोटे सॉन्ग बेसिस रे क्वेश्चन आस्थिला तो हम इंडिया रो कौन होची सिंग माने म्यूजिक डायरेक्टर ऑस्कर पाइचंती ओके AR रहमान तो ये सब माने आसीथिला मोर बेसिक क्वेश्चन रे तो से मुझे आपको ये सब थ्योरीज उठी तो ये आमर प्लानिंग कौन गोटे रैंडम क्वेश्चन ये सब टॉपिक उपर रहिबो किंबा मु आपको कौन ना मॉडर्न हिस्ट्री हो जियोग्राफी हो पॉलिटी हो से सब उपर गोटे ब्रीफली गोटे तुमको कौन ना क्वेश्चंस करेबी विथ पूरा टॉपिक वाइज क्लियरिटी देवी ओके देन हम आजकार क्लास स्टार्ट करवा विथ आजकार स्पेशल हाँ टॉपिक कौन अच्छी ना UPSC अबाउट ऑफ UPSC क्या माइंड रे ड्रीम थी मु IAS हेबी IPS हेबी IFS हेबी इंडियन फॉरेन सर्विसेस रे जॉब करी IRTS हेबी इंडियन पोस्टल सर्विस रे जॉब करी इंडियन डिफेंस सर्विस रे जॉब करी तो से सब ऊपर आम आज आपको ड्रीम आड़ को टे नहीं जावा आपको ड्रीम आड़ को टे मुहाई नहीं जावा जे UPSC व्हाट इज UPSC डिमांड व्हाट इज UPSC टॉक अबाउट योर माने डिटर्मिनेशन ओके तो देखी दियो आजिकार इवनिंग रे आमे गोटे कौन ना मोटिवेशनल टॉक बा मोटिवेशनल स्पीच नहीं कि क्लास को स्टार्ट करिया सक्सेस इज नॉट फाइनल फेलियर इज नॉट फेटल इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स विस्टन चर्चिल
विंस्टन चर्चिल एटा कहते ना सक्सेस इज नॉट फाइनल ओके सक्सेस केवे माने सीमित ही रुहेनी फेलियर भी तुमको केवे माने बाधा दिएनी कहीं फेलियर ही तुमको किसी नुआ जिनस कर शिखई थाए तो से करेज रख साहस रख एवं आगे चलो तो तुमर जो जहाँ भी अच्छी ताको काउंट कर चलो ओके। तो आजिकार फर्स्ट क्वेश्चन एटा इज रिलेटेड टू करंट इश्यू एंड इंडियाज बायलैटरल रिलेशन। इंडिया हैज साइंड ए 3-year वर्क प्रोग्राम with which country for cooperation in agriculture ओके एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पाई इंडिया का सहित 3 वर्षर गोटे प्रोग्राम साइन करछि तो ए यूएसए बांग्लादेश इजराइल रशिया ओके देन एठू हमें देखिबा फर्स्ट यूएसए रो कैपिटल के कहि परियो यूएसए रो कैपिटल वाशिंगटन डीसी रो फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ओके बांग्लादेश रो कोन ढाका ओके देन ढाका एक्चुअली मुझे तुमको गोटे क्वेश्चन पचार ढाका आमर कौ समिट्र बा कौ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर अच्छी स्टार्टिंग होता है मत कमेंट जनइबे। देन इजराइल रशिया तो जानते रशिया सहित आम इंडिया बहुत बायलैटरल रिलेशंस अच्छी। देन आंसर कौन इजराइल है इजराइल गोटे एक्चुअली बहुत समृद्ध बहुत शक्तिशाली देश ओके। तापरे इंडिया एंड इजराइल आर इम्प्लीमेंटिंग द इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्चुअली मोर कौन ना टे प्रोनाउंसिएशन टे सेमती रही जाए तो टे मैनेज भी करदे तो एग्रीकल्चर माने प्रोजेक्ट सेंटर्स एंड एक्सीलेंस एंड इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस ओके। तो MIDH मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड महसब है टेक्निकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ग्रुप गोटे इजराइल्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को से कोऑपरेट करे एंड लीडिंग इजराइल लार्जेस्ट G2G कोऑपरेशन ओके विथ 29 ऑपरेशनल सेंटर एंड एक्सीलेंस अक्रॉस द 12 स्टेट्स इम्प्लीमेंटिंग एडवांस इंटेंसिव एग्रीकल्चर ओके एडवांस आउ इंटेंसिव प्रमोट कर एग्रीकल्चर को आम इंडिया रे एवं तांकोरी भी तांकर जो सब पद्धति अच्छी तांकर जो एग्रीकल्चर केमती से सब प्रोत्साहन आणुचंदी आम इंडिया ताको प्रमोट करचंदी। देन फार्म्स एग्रीकल्चर फार्म्स विथ इजराइल आर्गो टेक्निकल टोलोरेटेड तांकर गोटे माने कोन ना इनिशिएशन आर्गो टेक्निकल ओके देयर आर्गो टेक्नोलॉजी हमर जेमतिया सब टेक्नोलॉजीज अछि सेमतिया तांकर आर्गो टेक्नोलॉजी टोलरेटेड टू लोकल कंडीशंस केमतिया आमे ए टेक्नोलॉजी को लोकल कंडीशन रे यूज करि परिबा ओके। देन दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जनरेट नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट बेस्ट प्रैक्टिस एंड ट्रेन फार्मर्स ओके। Every year, these COE produce more than 25 million quality vegetables, माने saddling more than 37,000 quality fruit plants and train more than 1.2 lakh farmers. Okay, एटा तांकर मेन मोटो ओके थीम भी धन्य थीम तांकर आमर जो इंडिया एंड इजराइल बायलैटरल रिलेशन एज अ 3-year एग्रीकल्चर ऊपर रोची ताकू से माने कोन डिस्क्राइब करचंती जो माने ए सब आमर थीम रोची आ about latest technology and field of horticulture. Then आमर एटा होची important एटी नरेंद्र सिंह तोमार is our Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Okay, the said the agriculture sector is always near priority in India. एग्रीकल्चर सेक्टर को आम इंडिया रे प्रायोरिटी दउछन तथापि आमर एग्रीकल्चर इज सो डैम्ड माने बहुत तले अच्छी प्रोत्साहन एत भी मिलू ना जो मैंने गरीब चाषी मैंने अच्छा सेमती ही रही जाती जो सब्सिडीज पाँच जो पाऊना किसी ना तो स्कीम आम इंडिया रे या ओके। देन छाड़ से कथा ड्यू टू माने एग्रियन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर इज द डेफिनाइट चेंजेस इन द lives of the farmers and agriculture sector increase the farmers income and determination of the प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओके प्लानिंग तो सब नरेंद्र मोदी को रुहे कहीं आमर से सब कौन ना प्राइम मिनिस्टर आम कौन ओडी माने भारत कर्ता धर्ता सब किछि तो से डिसाइड कर क्या सहित कौन केमती बायलैटरल रिलेशंस रही आउ गोटे भी सब गोटे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन ना बेसी विदेशाग्रस्त प्राइम मिनिस्टर आम जदि इंडियन हिस्ट्री किए थाए ताले किए ना नरेंद्र मोदी बहुत थर विदेशाग्रस्त जाइछन्ति ओके छाड़ो तो ये लॉकडाउन जो भी जाई पार नाहंती। बांग्लादेश फेमस एग्रीकल्चर द कंट्री इज अमंग द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ राइस ओके राइस रे से टॉप प्रोड्यूसर कहीं तार 4th पोजीशन अच्छी पोटैटो 7th ट्रॉपिकल फ्रूट्स 6th जूट 2nd फार्मर्स फार्म्ड फिशिंग माछ चाष ओके 5th and with of 35 million metric tons produced
इन 2000 मसीह एटा गोटे आकलन कराइला राइस इज द बांग्लादेश प्रिंसिपल क्रॉप। तो आम ऑप्शन रे थिला बांग्लादेश ता विषय तार एग्रीकल्चर विषय टिके कॉन्सेप्ट को उठे नेले जस्ट मन रखिया पे यो नॉलेज है ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंक्लूडेड हाउ मेनी स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 4 6 3 10 then answer is 6. The National Sports Award is the collective name given the 6 sports award of the Republic of India. These are awarded annually by the Ministry of Youth Affairs. ओके ये मत गोटे कमेंट्री भी जनइबे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ मुझे जिते भी क्वेश्चन पचारि सहित डिटेलिंग सह आपण मैंने गोटे क्वेश्चन भी छाड़ी दी सेमती मुझे गोटे क्वेश्चन छाड़ी 1 नंबर क्वेश्चन रे जे ढाका रे आम वर्ल्ड रो कौन समिट बा कौन ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर अच्छी ओके। तो हिंट्स भी दे दूची 1985 रे ता माने इनागुरेटेड होता। तो ये सेमती मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रे किए अच्छी मिनिस्टर तो मत कमेंट रे जनइबे। दे आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द सेम सेरेमनी ऑफ राष्ट्रपति भवन यूजिंग द 29 अगस्त रे एटा रेगुलरली दिया जाए along द नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड एज टू 2020 as the total 133 individual award have been awarded in the various national sports awards in athletics. The 4 awards presented by athletics are the Rajiv Gandhi Khel Ratna, Arjun Award, Dhyanchand Award and द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये होचंती हमर जने लॉन्ग जंपर 2004 रे एठी तांको डिस्क्राइब कराई छी। 2004 रे से होची कोन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाइथिले तांको नाम हला अंजू बोबे जॉर्ज ओके से रिसीव करथिले। तो देखो अवार्डेड फॉर द वेरियस स्पोर्ट ऑनर ऑफ द इंडिया सपो माने स्पॉन्सर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके। आगो स्पॉन्सर्ड किए कोची ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड करची। लोकेशन किटे रहउची ना राष्ट्रपति भवन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो ये सब एक्चुअली एटा आम इंडिया रे गोटे भल स्कीम जे आमे खेल को केते प्रमोट करछे। तो समस्त भितर गोटे खेलिबार भी एंजाइटी थाए जे खेल रे भी किछि करिवि। तो एटा सबठु आम इंडिया रे गोटे माने आम नेशनल रे गोटे भल इनिशिएशंस। देन आम देखा प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट अवार्ड मुझे दिन भी आपको कही 1961 रे फर्स्ट अवार्ड दिया लास्ट अवार्ड 2020 रे दिया जाइए टोटल अवार्ड ये दिखाई 133 ओके। तो आमर 4टा जो अवार्ड होची अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड ध्यानचंद अवार्ड। एटा भलसे मन रखिए एटा एज ए माने नेशनल अवार्ड मन रखी एमती आज गोटे कॉन्सेप्ट अच्छे कि मु द्रोणाचार्य अवार्ड से दिन आपको कही अर्जुन अवार्ड विषय में पूरा डिटेल से आज द्रोणाचार्य अवार्ड डिटेलिंग पढ़ा। तो एमती आपन को जो हॉकी रे अच्छी बैडमिंटन रे अच्छी जेकोसी भी स्पोर्ट्स रे बेस्ट मैनेजर को आम धरनी यूएस ओपन रे बा विम्बलडन ओपन रे ये सब रे कौन सब माने रोची प्राइजेस कौन रोची बा कि से फर्स्ट अच्छी कि केते थर जीती। फुटबॉल रे रोनाल्डो केते थर गोल्डन बूट जीति, मेसी केते थर जीति। तो ये सब ऊपर आम डिटेलिंग आलोचना करिया आस्ते आस्ते आगो क्लास रे स्टैटिक्स रे सब एटा जाउची। देन आज मुझे कौन द्रोणाचार्य अवार्ड। एक्चुअली द्रोणाचार्य किए मत कहे द्रोणाचार्य किए? द्रोणाचार्य जड़े है महाभारतर श्रेष्ठ गुरु। आम ताको एमती भी जब पढ़ू श्रेष्ठ गुरु भाव पढ़ू तो द्रोणाचार्य को माने शिक्षा रे बहुत तांकर कौन महाभारत रे सॉरी आमर कौन तांकर द्वापर युग हाँ द्वापर जुगरे जो महाभारत थिला बा द्वापर जुगर जो अर्जुन आमर दुर्योधन एका तांकर जो कौरव पांडव सब गोटे माने जगार जो कौन प्रशिक्षण नौथिले बा शिक्षण नौथिले सेठी से माने तांकरी द्वारा बहुत गुणी हो जाती ओके। अर्जुन को कहीं आम विश्वर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी को केवल द्रोणाचार्य को दू। जदि द्रोणाचार्य साथी न था एत बड़ माने पाहिया न दी था केवे अर्जुन केवे माने विश्वर सबुठार बड़ धनुर्धारी हो पार न था कहीं लेवल भी दुई जन थे जानी किए किए जड़े है एकलव्य आ जड़े है कर्ण बट से माने कौन ना कर्ण महादानी हो रहीगले और एकलव्य कौन ना बेस्ट स्टूडेंट माने श्रेष्ठ शिष्य हो रहीगले। तो देखो द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफिशियली नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड इज द आउटस्टैंडिंग कोच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। इस स्पोर्ट्स कोचिंग रे माने एटा कौन कही ना द्रोणाचार्य जमितिया माने आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स थिला एज ए कोच भावे सेमितिया
आम इंडिया जो द्रोणाचार्य अवार्ड दि जाए सेमितिया सही कोच रो मिनिमम सेमितिया एफर्ट थी से सेमितिया तार माने इनिशिएशन थी सेमितिया तार प्रेजेंट माने मेंटालिटी थी जे आम इंडिया रे जति सब मो अंडर शिखुचंती बा क्रिकेट कोच हो जमतिया क्रिकेट रे कोच रवि शास्त्री होचंती तो सेमितिया कथा ओके। तो एटा से विषय कही एटा देखि दियंतु द्रोणाचार्य जो अवार्डटा देन एटा 2 awards are designed in the lifetime contribution of the coaching where the achievement of producing outstanding sports person over 20 year okay timing टा होची 20 year जदि तुम 20 year भितर तुमर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थिबो एज ए कोच देले तुमको सेटा को कंसीडर करा हबा नॉमिनेटेड हबो तार प्राइज मनीटा केते रहउची देखि देबे एठी 15 lakhs। द्रोणाचार्य अवार्ड इज ए सिविलियन अवार्ड आउ एटा देखि दियंतु जो पिकटा महाभारत टाइम रो गोटे मुठेजी देन फर्स्टली अवार्डेड या दिया ना 1985 रे। तो प्रथमे किए पाइथिले ना बालचंद्र भास्कर भगवत ओम प्रकाश भरद्वाज ओम निम्बार ओके। देन ये देखंतु ये कौन कौन पाई बालचंद्र भास्कर भगवत से रेसलिंग पाई ओम प्रकाश भरद्वाज बॉक्सिंग पाई ओएम निम्बार एथलेटिक पाई ओके। तो ये सब रोची। तो देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च बाय द इंडिया एंड यूनिसेफ टू एंगेज यूथ पीपल एड्रेस कोविड क्राइसिस। तो कोविड क्राइसिस पाई आमर जो यूथ जो मैंने रोचंती ताकू यूनिसेफ केमतिया प्रमोट करची बा केमतिया तार टैग कोन दीची बा थीम कोन दीची ओके। देन कोविड वॉरियर ऑप्शन कोविड वॉरियर यूथ वॉरियर कोविड कैंपेन एंड टैकल ऑफ द क्राइसिस बा टैकल द क्राइसिस। तो आंसर है यूथ वॉरियर ओके। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयरेंस द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द यूनाइटेड नेशन चाइल्ड्स फंड एटा होची मन रखिबो तार फुल फॉर्मटा बहुत जगह पड़े। इट इज द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ युवा with the support over the 950 coalition partners has launched a pan India campaign called Youth Warrior to engage youth people across the country to address the ongoing COVID-19 crisis and keep their family and neighborhood safe okay एटा सब तार जो रहउची। देन देखंतु एटा सब तार विषय लिखिची एटा आपन को पीडीएफ देले आपन पढी देबे तार आउट किछि डिटेलिंग अछि। देन आम यूनिसेफ विषय उठे यूनिसेफ कौन एटा हूँ तुम कौन ना इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर एंड तार कौन ना से तार इम्प्लीमेशन कौन तार इनिशिएटिव कौन रोचे विषय यहाँ क्वेश्चन उठे ओके। तो यूनिसेफ इज ऑल्सो द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड is the United Nations emergency responsible to providing humanitarian and developmental aid to children worldwide. The agency among the most widespread of the recognizable social welfare organization in the world with a presence of 192 countries and territories. UNICEF is the activity included providing immunization and disease prevention, administering treatment for the children and mother with HIV, enhancing childhood and material nutrients, improving sanitation, promoting education and providing emergency relief of life. एटा मन रखिए। तो यही सब पैरामीटर्स रे यूनिसेफ काम करे ओके। एटा गोटे यूनिसेफ है चाइल्ड एमरजेंसी फंड ओके। एटा एक्टिवेट होता 11 डिसेम्बर 1946 रे। तार हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क बहुत जगह हेडक्वार्टर पड़े जमती मु गोटे एग्जाम रे देखी आपको से दिन कही जे दी हग माने आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौटी अच्छी दी हैग नेदरलैंड रे अच्छी सेमतिया यार यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ना न्यूयॉर्क यूएस रे अच्छे ओके। पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन किए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल सोशल ओके। तो ये सब रोची यार जो एटा हूँ कौन तार लोगो भलसे देखिदेवे मन रखिए। नेशनल पब्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फोर्थ क्वेश्चन नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्ट प्रसार भारती इज ए डैश बॉडी रेगुलेटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ओके। तो आंसर कौन ना बी स्टैट्यूटरी। प्रसार भारती इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी। तो ये फर्स्टली मुझे तुमको बुझे दूसरी कौन ना तो इट मीन्स आम ए स्टैट्यूटरी बॉडी मान देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी इज गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी
गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी एठी एग्जीक्यूटिव माने रुहंती एठी माने एमानकर पर्सनल पावर थाए ओके ताहारी ऊपर एटा माने डिपेंडेबल तो जेमती एग्जीक्यूटिव जेमती आमे तेती सब रहउची एग्जीक्यूटिव पोस्ट जेती रहउची सेक्रेटरी पोस्ट जेती रहउची सेही लेवल लो एटा ओके तो प्रसार भारती इज द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी सो इट्स ए गवर्नमेंट ऑथराइजेशन बॉडी बा ऑटोनोमस बॉडी ओके तो प्रसार भारती इज द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट एजेंसी हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी ऑटोनोमस बॉडी सेट अप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड comprises the दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क एंड ऑल इंडिया रेडियो sorry तो এটা কোন কোটি গেলা না অল ইন্ডিয়া রেডিও হুইচ আর দ্য ইয়ারলিয়ার মিডিয়া यूनिट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द प्रसार भारती एक्ट ग्रांट ऑटोनॉमी इन द 1990 बट इट वाज द इनैक्टेड इन 15 सितंबर 1997 इटा ही पड़े तो इनैक्टेड के हेतला इनागुरेशन तो समस्त जानथिबे 1990 रे हिला बट इनैक्टेड के हेतला जतले एक्ट को आसला सी ओके प्रसार भारती द एजेंसी ओवरव्यू 23 नवंबर 1997 23 ईयर एगो एटा हिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली माने मन रखिए पढ़ी जाए एग्जाम रे डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश चेयरमैन डॉक्टर शशि शेखर वामपति सीईओ चाइल्ड एजेंसी कौन ना ऑल इंडिया रेडियो बा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दूरदर्शन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ओके तो द प्रसार भारती बोर्ड चेयरपर्सन पोजीशन रिमेन वैकेंट सिंस डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश डिमिटेड ऑफिस ऑफ फेब्रुआरी माने 2020 तो एबे सी पोस्टटा वैकेंट अछि से विषय कहूची तो एटा देखि देबे तार जो मेंबर्स केते रहउची हला द कंसिस्ट ऑफ प्रसार भारती मेंबर्स चेयरमैन जणे रहउछंती वन एग्जीक्यूटिव मेंबर रहउची वन मेंबर ऑफ फाइनेंस रहउची वन मेंबर ऑफ पर्सनल 6 पार्ट टाइम मेंबर्स डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी एक्स ऑफिशियो ओके डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन एटा सब समस्त माने आईएएस पद हला एटा से माने रहंती तो one representative of the Union Ministry of Information and Broadcasting India to be nominated by the ministry and two representative of the employee of the home one shall be elected by the mane engineering staff amongst themselves and one shall be elected by themselves employee for amongst themselves okay माने एटा होची तार प्रोसीजर होची बा एमान सब जेमतिया धर जो सपोज आमी यूपीएससी रे गोटे मेंबर बाचे यूपीएससी रे चेयरमैन तो रहउचंदी ता सहित दीटा अधिका मेंबर रहउचंदी से बेला एटा तो देखि दियंतु से बेला एटी गोटे उठाई दी एक्टर काजल हैज बीन नेम द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 5 ईयर अंटिल नवंबर 2021 ओके पार्ट टाइम मेंबर से अछंदी व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज द दोस्ती फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मेंटल वेलबींग ए क्वेश्चन टा उठेबार माने एटा जीए रे पड़े ओके सिटी बीएड हो बा जे कोनसी ये रे नो जनरल अवेयरनेस सेक्टर रे एटा पड़े तो एआईसीटी एनटीए सीबीएसई यूजीसी यूजीसी फुल फॉर्म कौन यूनाइट माने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ओके सीबीएसई सर को ना एटी कौन ना सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन तो आंसरटा कौन ना सीबीएसई एटा कौन पाई ना एटा गोटे होची माने ए जो प्रोसेसटा एटा गोटे आपटा इनिशिएशन हेची फॉर मेंटल स्टूडेंट्स पाई मेंटल जे माने तांकर माने ब्रेन ट्रॉमा एका जहाँ भी एनीथिंग हेई थाए तांको 9 to 12 स्टूडेंट पर्यंत माने 12 क्लास स्टूडेंट पर्यंत जेतकी अछनी तांको पई एई आपटा इनिशिएशन हेची तो ऑल अबाउट द सीबीएसई विषय कौन कौन रोचे देखो नोट डाउन कराई तो सीबीएसई रे कौन कौन ये सब पड़ी जाए ना सीबीएसई रे हेडक्वार्टर कौन अच्छी सीबीएसई रे कौन कौन अच्छी तो से टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड तो एजुकेशन रिलेटेड सब से उठाई इन द नेशनल लेवल बोर्ड माने बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल कंट्रोल द मैनेजमेंट बा मैनेज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया there are approximately 2127 माने one school in India and 2020 school in 28 foreign country affiliated by the CBSE तो यार ऊपर रोची तार एटा होची लोगो सॉरी प्रसार भारती रे लोगो एठी माने प्रिंटेड हेची सॉरी देन 3 नवंबर रे एटा होची इनिशिएशन हेतला ओके ना हेडक्वार्टर टा कोठी ना न्यू दिल्ली रे अछि ऑफिशियल माने लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश चेयरपर्सन एबे मनोज आहूजा एटा होची बहुत इंपोर्टेंट मनोज आहूजा एक्सआईएएस से चेयरपर्सन अच्छा पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओके
तो तार हिस्ट्रीटा कौन रोचे ना से केमिति क्रिएट है दि फर्स्ट एजुकेशन बोर्ड टू बी सेटअप इन इंडिया वाज इन उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हायर माने हायर स्कूल इन इंटरमीडिएट एजुकेशन इन 1921 व्हिच वाज अंडर द जुडिकेशन ऑफ द राजपूतना सेंट्रल इंडिया ग्वालियर ग्वालियर टेकुडी मध्य प्रदेश ओके इन 1929 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द जॉइंट बोर्ड नेम बोर्ड ऑफ High School and Intermediate School Rajputana. They included Ajmer, Mewar, Central India and Gwalior. Later it was confined to Ajmer, Bhopal and Vindhya Pradesh. Vindhya Pradesh is now Madhya Pradesh. In 1952 became the Central Board Secondary Education, which has been appointed as the acting chairperson of the National Human Rights Commission. National Human Rights Commission रे किए हुए acting chairperson अछंती ना पीसी पंत ओके सो जमती रिटायर्ड जस्टिस पीसी पंत एवं तार कौन ना एक्टिंग चेयरपर्सन अच्छा तो पीसी पंत फुल फॉर्म है प्रफुल्ल चंद्र पंत से रिटायर्ड जस्टिस तो ये क्वेश्चन टा उठाया माने द एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जड़े जस्टिस को प्रिफर करे ओके जस्टिस को से माने से निजर चेयरपर्सन बनाती तो अबाउट ऑफ एनएचआरसी द नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ऑफ द माने इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी भी गोटे ऑटोनोमस बॉडी ओके 12 October 1993 under the protection of human right ordinance of 28 September 1993 এটা create hitla it was the given of statutory basis of the protection of human rights act 1993 okay the NHRC is the National Human Rights Commission of India responsible to protection of promotion of protection and promotion of human rights defined by the act as the right to relating to the life liberty equality and dignity of individual guaranteed by the constitution or embodied in the international convenient and enforceable by the courts in India okay तो प्रोनाउंसिएशन टी सेमती असुविधा रोचे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन विषय यहाँ कहुई तो नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिन मे ऑल हैप्पी तो फॉर्म डेट एट 12 October 1993 ओके तो यहाँ हूँ तार चेयरपर्सन एका केमती कौन अच्छा सीएचएससी लोगोटा ये रही सॉरी तो नेक्स्ट है तार मान तार कमिटी केते जन रुहंती से कमिटी एनएचआरसी कमिटी केते जन रुहंती द प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होम मिनिस्टर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा बा लोअर हाउस द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा अपर हाउस द स्पीकर ऑफ लोकसभा लोअर हाउस डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अपर हाउस ओके तो यहाँ ही रोचे व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2021 वर्ल्ड कैंसर डे रे थीम टा कौन रोचे ओके थीमटा रोचे कौन आंसर डायरेक्ट कही दूसरी ऑप्शन देखी दिंतु आंसरटा है आई एम एंड आई विल यहाँ हूँ थीमटा तो ऑब्जर्व हुए केबे ना 4 February 2002 यहाँ ऑब्जर्व होची प्रत्येक वर्ष 4 February ऑब्जर्व हुए नुआ नुआ थीम्स आसे तो वर्ल्ड कैंसर समिट एग्निस्ट कैंसर ऑफ द न्यू मिलेनियम इन द पेरिस यहाँ होता ओके एस्टाब्लिशमेंट तो व्हेन वाज द ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ओशन डे केबे ऑब्जर्व करे June 8 आंसर है June 5 June 7 June 8 June 9 बट आंसर है June 8 तो June 8 ये तो रिसेंटली आसो आग को वर्ल्ड ओशन डे तो काली गला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे June 5 ओके तो हिस्ट्री कौन ना 2008 यूनाइटेड नेशन गैदर्ड द यूनिफॉर्मली क्रिएटेड वर्ल्ड ओशन डे इट इज द फर्स्ट proposed in 1992 at the Rio de Janeiro during the Earth Summit ओके कहीं ना आम सब एगुड़ा को इम्पोर्टेंट दौचे कहीं आमर वाटर इज द इम्पोर्टेंट ओशन्स इज अवर इम्पोर्टेंट माने सिनेरियोज रोचे सो से आम यूनाइटेड नेशन रे इम्पोर्टेंस दौचे ओके देन आउ कौन रोचे ना 3rd June रे आसुची तो यही मंथ रे कौन कौन सब इम्पोर्टेंट माने यही रिसेंटली जी रही सब नोट डाउन कर वर्ल्ड बाइसाइकिल डे फॉर एटा कौन ना रिकॉग्नाइज टू यूनिकनेस लॉन्जिविटी वर्सेटिलिटी एंड बाइसाइक्लिंग ओके 4th June इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम एग्रीगेशन केमती से माने ऑन दिस डे यूएन डिसाइड करे बा एफर्म करे द कमिटमेंट ऑफ द प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चाइल्ड माने छुआ मान जो मूलाधिकार अच्छी ताकू केमती प्रोटेक्ट हम कौन यूनाइटेड नेशन तार माने ध्यान दिए सेमती 5th June वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रिसेंटली मुझे पेपर देखी आम ओडिशा 1254 वर्ग किलोमीटर माने निज ओडिशा माने आम ओडिशा राज्य भितर कौन मैंने वृक्षारोपण बा जंगलर क्षेत्रफल बढ़ेची तो यहाँ आम निज निज भितर बहुत बड़ गोटे अचिवमेंट एंड एथरकार
वर्ल्ड माने कौन एनवायरमेंट डे रे होस्ट करछि पाकिस्तान तो मु देखिथिली एंड कौन ना थीम हैला कौन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वुड 7 जून रे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे एंड 8 जून रे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एटा मन रखिबो 8 जून रे सी वर्ल्ड ओशन डे दुटा डे होछि गोटे दिन रे पड़छि तो व्हाट इज द रैंक ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट इन इंडिया ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आम इंडिया केते अच्छी 149 कंट्रीज कैलकुलेट करा जाए से आम इंडिया रैंक अच्छी 139 ओके तो ये मुझे तुमको फास्ट कही दे वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स माने कौन माने आम केते हसुचे आम केते हसी पारिबा ताहारी ऊपर इंडेक्स तैयारी होची बट से नुहे ओके ता पैरामीटर्स सब अच्छी ये मुझे नोट डाउन कर आपको पैरामीटर्स सब कौन देखूँ दि ग्लोबल वर्ल्ड पोल तार पैरामीटर्स कौन रोची ना मेजर ऑफ 14 एरियाज विथ इन कोर क्वेश्चन ना बिजनेस एंड इकोनॉमी सिटीजन एंगेजमेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी एजुकेशन एंड फैमिलीज इमोशन एनवायरमेंट एनर्जी फूड एंड शेल्टर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स लॉ एंड ऑर्डर हेल्थ माने रिलीजन एंड एथिक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड वर्क यही सब पैरामीटर्स उपरे आम ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स तैयारी करछे तो सी पैरामीटर्स रे आम इंडिया तो 139 रे अछि फर्स्ट ऑलवेज कंटिन्यू 4 ईयर हैला माने टॉप रे अछि कि फिनलैंड अछि ओके फिनलैंड कंटिन्यू 4 ईयर हैला टॉप रे अछि तो सेमितिया तो तार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया व्हिच मूवीज गॉट इंटरनेशनल अवार्ड इन रिसेंट ईयर रे किए नेशनल अवार्ड पाइछि मींस 2020 रे किए नेशनल अवार्ड पाइछि ऑप्शन है छिचोरे मिर्जा एम एस धोनी आर्टिकल 15 ओके मु फर्स्ट रू मिर्जा रे एक्ट्रेस अच्छी सॉरी मिर्जा तो सेमती गोटे ना आनी छिचोरे रे कौन ना सुशांत सिंह राजपूत एम एस धोनी रे भी सुशांत सिंह राजपूत आर्टिकल 15 रे किए ना हूँ आयुष्मान खुराना ओके आयुष्मान को आर्टिकल 15 भी नेशनल अवार्ड पाई बट 2019 रे पाई ओके देन छिचोरे रिसेंट ईयर रे नेशनल अवार्ड पाई तो सुशांत सिंह राजपूत भी आम भितर ना भी देहांत गत वर्ष होती तो दि नेशनल अवार्ड वाज द बेस्ट फिल्म फिगर बा बेस्ट फिगर फिल्म इन द हिंदी बा फीचर इन हिंदी वन ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड प्रेजेंटेड बाय एनुअली द डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल द ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंडिया इट इज वन ऑफ द सेवरल अवार्ड प्रेजेंटेबल बाय द फीचर फिल्म एंड अवार्डेड विथ रजत कमल एटा गोटे मान जो पुरस्कार स्ट्रक्चरटा से कहुई तो नेशनल फिल्म अवार्ड द बेस्ट फिल्म इन हिंदी नेशनल अवार्ड कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया सिनेमा अवार्ड से कौन माने इंडियन सिनेमा को से कौन ऑफर दूची जमती आर्टिकल 15 कौन पाई अवार्ड पाइला छिचोरे कौन पाई अवार्ड पाइला छिचोरे रो मु तो माने छिचोरे अवार्ड पाइला बट मते तार गोटे ही जिनसटा भल लागला छिचोरे मूवी रो लास्ट गोटे बहुत जिनस गोटे शिखिबार अछि कोन ना प्रत्येक क्षेत्र में जीति भाई मैटर करें जे तुम्हें सबू क्षेत्र में जीत बट तुम्हें माने तुम्हें हारिबा भी तुम माने जीतवा सहित सामान होता है जिते तुम्हें तुम परिश्रम तुम डिटरमिनेशन तुम प्रिजर्वेरेन्स तुम हार्डवर्क से लेवल हो तो तुम्हें से लेवल जो परिश्रम कर हाँ 1 मार्क बा कौटी कौन रहीगला जो हुए तो मन में दुख हुए जे मुझे हारी हारीगली क्वालिफाई है एनीथिंग एंटायर जहाँ भी बट तुम परिश्रमटा तुम जो ग्राफटा समस्ते देखी ना हाँ पिलाटी परिश्रम करथिला तो एटा ही मेन मोटो तो जीतवा हूँ सब मैटर करें जे तुम ये जीतवा दरकार बस तुम शिखा दरकार जे भाई मुझे शिखी एति मुझे जानी ओके तो सही कथा ये कही छिचोरे मूवी लास्ट को यही सीनटा अच्छी देन जो जे सुशांत सिंह राजपूत टीमटा जो हॉस्टेलटा हारीज देन समस्ते जो हॉस्टेल जो जीति से समस्ते छिड़ा स्टाडियम भितर क्लैप करेंगे ओके कहीं केबे भी से जो हॉस्टेल पिला माने जीति पार नथिबे फर्स्ट टाइम पे से माने सेकंड होइथिबे तो सही पाई ओके देन फर्स्ट मूवी जो पाइथिला जो अवार्डटा एटा मिर्जा गालिब आम इंडिया रो फर्स्ट मूवी 1954 रे पाइथिला कि मिर्जा गालिब ओके फर्स्ट मूवी सो सेवरल लैंग्वेज रे बंगाली हिंदी कन्नड़ मलयालम मराठी तमिल तेलुगु ये सब रे दिया जाए ओके तो देखि देबे समितिया व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अटल पेंशन योजना for 4,500 5,000 5,050 5,500 okay तो maximum amount is 5,000 तो it is the individual you entitled grant माने guaranteed pension 1000 भी दिया जाए 2000 भी दिया जाए 3000 भी दिया जाए 4000 भी दिया जाए 5000 दिया जाए ये सब जिनस मैंने कौन क्राइटेरिया नहीं कि इन द केस ऑफ डेथ सब्सक्राइबर जे धर जो अटल पेंशन योजना रे थिबो बा पेंशन पाउथबो जदि से केबे मरी भी जाए तार सपोज एंड नॉमिनी जे माने थिबे से माने पाइबे
ओके। तो प्रथम एटा कौन ना स्वावलंबन योजना थिला, तो ताकू अटल अटल पेंशन करागला। तो एटा 2015 यूनियन बजेट रे जो हेतला एटा पुणी थरे री अनाउंस्ड हेतला। ओके, एटा पुणी माने फास्टली नरेंद्र मोदी ताकू इंट्रोड्यूस करथिले इन 9th May एट कोलकाता। ओके, तो एटा रिक्रिएटेड ओरिजिनली इट इज लॉन्च इन 2010 2011। ओके, बट ताकू माने री लॉन्च्ड कराइतला ताकू इन यूनियन बजेट रे 9th May 2015 एट कोलकाता। 6 ईयर हो गलानी। तो से विषय कही तार क्राइटेरिया कौन कौन रोचे, यू मस्ट बी इंडिया सिटीजन, यू मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 4 माने 40 इयर्स, यू मस्ट हैव द एक्टिव मोबाइल नंबर, यू मस्ट हैव वैलिड बैंक अकाउंट लिंक्ड और टू योर आधार कार्ड, यू मस्ट सबमिट ऑल KYC रो फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, एटा फुल फॉर्म टा मन रखियो। यू मस्ट हैव एन एक्जिस्टिंग APY अटल पेंशन योजना विषय कही। तो व्हाट इज एडुसेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडुसेट? एजुकेशनल स्कीम, एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल पॉलिसी। बट बस एति ही मन रख एजुसेटा कौन, एजुसेट विषय डिटेलिंग ही पचारे, बट आउ किसी पचारे हाँ जदि लॉन्च विषय पचारे 2004 रे लॉन्च होता एवं तार डिकम्पोनाइज होता 2010 रे। तो एटा गोटे एजुकेशनल सैटेलाइट, एटा ही मन रखियो। व्हाट इज एडुसेट? एडुसेट इज ए एजुकेशनल सैटेलाइट, दैट्स इट, एति। तो मु खाली ता डिटेलिंग देछि तो कौन ना सैटेलाइट विच लॉन्च्ड ऑन 20 September 2000। ओके, तो यहाँ हूँ कौन ना 5000 किलोमीटर रन अवे करथिला श्रीहरिकोटा ठारू। एडुसेट वाज द सक्सेसफुली लॉन्च इंट्रो जियो सिंक्रोनाइजेशन बा सिंक्रोनियस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO फुल फॉर्म मन रखियो। फुल फॉर्म सब ही पड़े जी माने जी सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच फ्लू द फर्स्ट लॉन्च पैड। ओके, तो ये भी गोटे देखिए एडुसेट वाज द decommissioned in September 2010 and relocated at Graveyard Orbit। यहाँ हूँ रिलोकेटेड होता जो यार 6 ईयर प्रोग्राम थिला ना, से 6 ईयर प्रोग्राम पर यहाँ रिलोकेटेड होता डिकमिशनड होता रिलोकेटेड होता एट 2010 रे। फुल फॉर्म देखो यहाँ हूँ आम इंडिया लार्जेस्ट व्हीकल सेक्टर जी माने सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज Mark II इज द लार्जेस्ट व्हीकल ऑफ डेवलप्ड बाय इंडिया व्हिच इज करेंटली ऑपरेशनल। इंडिया हैज 2 ऑपरेशनल लॉन्चर्स, पोलिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो माने कौन साइनरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पढ़ी देवे। तापर नानक साहेब गुरुद्वारा रिसेंटली सीन न्यूज इन सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री? तो नानक साहेब गुरुद्वारा बा नानक गुरु नानक किए? फर्स्टली गुरु नानक इज सिखिज्म रो फर्स्ट गुरु, एटा होची फर्स्ट पॉइंट। सिखिज्म को जदि किए सुदृढ़ बा सिखिज्म को जदि किए इंट्रोड्यूस करता है सी होला गुरु नानक। तो अब आस क्वेश्चन को जीवा इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान ऑप्शन देछि तो आंसर है पाकिस्तान। ओके, तो नानक साहेब गुरुद्वारा इज द हाईली रेवर्ड गुरुद्वारा लोकेटेड इन सिटी ऑफ नानक साहेब नियर लाहौर पंजाब। तो यही सब माने सिखिज्म विथ पाकिस्तान सहित रिलेटेड कहीं जो आम तुम्हें माने जोग्राफिकल व्यू देखियो इन मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ो से तुम्हें देखिपर जो पाकिस्तान आउ पंजाब एका यही सब भितर को रिलेशन बहुत थिला। ओके, देन से जो पार्टीशन है किसी एरियाज बा किसी धर्मी सब सेठी भी अच्छा एठी भी रही जाती यही सब विषय से कही। द गुरुद्वारा इज द बिल्ड एट द प्लेस where the first Sikh guru was believed to born of purchased Sikhism। it also called the माने जन्म आस्था गुरुद्वारा, एटा ताको कहा जाए। एटा होची also called the जन्म आस्था गुरुद्वारा। क्वेश्चन भी पड़े जे जन्म आस्था गुरुद्वारा रिसेंटली कोठी देखा जाए बा या कोन आ विषय कोन एमतिया सब पड़े। तो देखो ये माने आर्ट एंड कल्चर ऊपर गोटे क्वेश्चन निहाई नगोबा यात्रा ए ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट और यूटी? मध्य प्रदेश, आसाम, तेलंगाना एंड मेघालय। ओके, तो आंसर है तेलंगाना। नगोबा यात्रा इज द फेस्टिवल ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इज द मैसरम क्लैन इन द गोड ट्राइब्स इन कलशपुर विलेज इन तेलंगाना। इट इज द सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। से मुझे क्वेश्चन उठे सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवलटा क्या कहुए ना कौन ना नगोबा यात्रा। हाँ, नगोबा ठीक अच्छे। देन द आइडल ऑफ गॉड नगोबा इज वर्शिप्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ट्राइबल पीपल हु बिलोंग द मेसरम क्लैन एंड रिसाइड द अदर स्टेट्स एंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ कैपिटल कौन ना
रायपुर and offered pray the festival pray at festival. The festival has concluded recently. The ritual of which was spread over a month. Okay, which of the following river is known as दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा भावे किए प्रसिद्ध एट माने कौन दक्षिण रे आम भारतर दक्षिण रे दक्षिण गंगा भावे किए प्रसिद्ध? ओके, ऑप्शन हैला कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी. तो आंसर हैला कौन ना गोदावरी. The about of Godavari. Godavari is the second largest river in India. So first is Ganga and second is Godavari. In the Triambakeshwar, Maharashtra, it flows east for 1465 km, draining the state of Maharashtra, and Telangana 80%, Andhra Pradesh 18.8%, 4.5%, sorry, Chhattisgarh 10.9%, and Odisha 5.7%. Mane just TK. The river is ultimately empties into Bay of Bengal, extensive network and tributaries. Okay. तो देखी दिंतु एटा सब तार होइछि एवं एटा होइछि द लार्जेस्ट पेनिसुलर इंडिया. ओके, माने गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन द इंडिया एंड द बेसिन इज द गोदावरी. दक्षिण भारतर लार्जेस्ट पेनिसुलर बेसिन भी हला कोन गोदावरी. एटा मन रखियो दीटा. तो पेनिसुलर इंडिया लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन द इंडिया हला कोन गोदावरी. लार्जेस्ट पेनिसुलर बेसिन भी कहार ना गोदावरी. The Krishnaraja Sagar Dam is located Karnataka. Is the built of which river? कौन माने नदी उपरे एटा स्थानित होइछि? ए कावेरी. कावेरी नदी उपरे होइछि. माने ऑप्शन हला कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी. तो कावेरी नदी उपरे होइछि. तो पिकटा देखि दियंतु एई भलिया होछि तार से डैम टा. तो Krishna Sagar, also popularly known as KRS, is lake and the dam that created it. They are closely settlement of the Krishnaraja Sagar in the India Karnataka city. The gravity dam made of Sukri mortar is the below of confluence of the river Kaveri with its tributaries Hemavati and Lakshmana, and in the district of मांध्य डिस्ट्रिक्ट रे एटा माने प्रोवाइड कराई छि एवं एटा होछि कराई छि कोन पे ना सेही सिटी को एंड बेंगलुरु सिटी को पानी जोगाण पे. एटा होछि ता थीम टा अछि. हु रिप्रेजेंट इंडिया इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आसला गोटे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन. तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना. आंसर हैला सेकंड रे महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी एमतिया सरोजिनी नायडू फीमेल जोग देथिले. मदन मोहन मालवीय विषय कोन जानछो? मदन मोहन मालवीय इज द प्रोपाउंडर. मदन मोहन मालवीय इज द फाउंडर ऑफ BHU. आनी बेसांत भी करथिले, बट आनी बेसांत एंड मदन मोहन मालवीयंकर अनुदान अछि. ओके, तो मदन मोहन मालवीय एंड आनी बेसांत आर द फाउंडर ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ को आमे माने हिंदी रे को काशी हिंदू विश्वविद्यालय. ओके, देन घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्जा इस्माइल दीवान of Mysore, SK Datta, Sir Syed Ali Imam, and other people that attend the conference. Okay, तो आमे एबे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विषय जानिबा. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टा कोन? जदि आमे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आमे एज ए डिटेलिंग धरिबा, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे हमर सब जो जते जन सेठी जतेटा कंट्री रे लोक माने भाग नियंती तार सब कोन कोन प्रॉब्लम्स रहिछि, सेठी कोन इनिशिएटिव होबो ब्रिटिश मानक द्वारा, से ही आलोचना होबे. तो तीन तो एडी सिमिलर क्वेश्चन सब कहि दोछि. तीनटा जाक माने राउंड टेबल बैठक रे किए ना बी आर अम्बेडकर जोग देइछंती. राउंड टेबल बैठक तीनटा हेतिला 1930 रे, 1931 रे, 1932 रे. 1930 रे गांधीजी जोग दे नथिले, 1931 रे होची जोग देथिले एवं 1932 टाको बहिष्कार करथिले. एटा मन रखियो काहा को बहिष्कार करथिले ना 1932 को जोग देइ नथिले केटा 1931 रे, सॉरी 30 रे, एवं जोग देथिले केटा 1931 रे. तो सेही भलिया महात्मा गांधी कौन पे माने बहिष्कार करथिले तार रीजन टा हला सेतळे से आम इंडिया बा आम भारत वर्ष रो जो असुविधा रहउची जो एटी सब इनिशिएशन दरकार सेतळे ए कथाटा को उठेथिले ब्रिटिश माने ताको नाखच करथिले. ओके, तो यही सब तार हिस्ट्री रहउची. आमे केबे मॉडर्न हिस्ट्री आ डिटेलिंग रे पढिले तो आहुरी तार सब डिटेल्स सब कहि देबी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हला, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो प्रथम प्रेसिडेंट किए ना? नवाब सलीमुल्लाह खान, ख्वाजा अब्दुल गानी, एम शमशेर अली, आगा खान थर्ड. ओके,
तो आंसर है दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द एस्टाब्लिश्ड इन 1906। 1906 पूर्व कौन होता इंपोर्टेंट फैक्ट 1905 रे बेंगल पार्टीशन। ओके तो आम मुझे तुमको मॉडर्न हिस्ट्री थ्योरी क्लास करी से कहबी व्हाट इज द माने इनिशिएशन से समय कौन होता है मॉडर्न आम मॉडर्न हिस्ट्री रे आम इंडियन नेशनल कांग्रेस टा डिवाइड होता इनटू टू पार्ट्स मेनी सेवरल पार्ट्स बट टू पार्ट्स मेजरली एंड सम सब सबऑर्डिनेट पार्ट्स सेमती ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी आसला से भाया 1905 रे चरम सॉरी 1905 रे भी 1907 रे चरमपंथी नरमपंथी सब बाहरी तो सब आंदोलन भी होता बट से सब केबे मिसी से सब केतले कोलाबोरेशन होते तापर आम इंडिया 1916 पर आम इंडिया फेज कौन रहा केमिति आम स्वाधीनता आड़ को जिते चरमपंथी नरमपंथी मानक चिंताधारा मिसला केमिति आम स्वाधीनता आड़ को मुहेलु से सब विषय आम आलोचना करवा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना हाँ यार आंसर है आगा खान थर्ड 1906 रे सी है कौन ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो परमानेंट प्रेसिडेंट होते। तो दी ईयर 1576 माने 1576 इज द फेमस बा 1576 मसीह इज द फेमस फॉर व्हिच अमंग द फॉलोइंग बैटल व्हिच कौन बैटल 1576 मसीहा फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ओके बैटल ऑफ हल्दीघाटी टुक प्लेस इन 1576 बिटवीन राणा मेवार महाराणा प्रताप एंड अकबर तांकर जो सेनापति थे मानसिंह विषय। ओके देन एटा हूँ विक्ट्री नहीं किए ना मानसिंह जीति देन अकबर को मन दुख होता कहीं ना राणा प्रताप को असाहसिकता देखी युद्ध प्रति असाहसिकता देखी तार माने तो वीरत्व राणा प्रताप और जो घोड़ा चेतक थिला तो ता विषय केबे स्टोरी कहबी तार सब जो जी कौन ना प्रोस्पेक्शन अच्छी क्यों एरियाटा तार माने से कौटिकार राजा थे मेवार राजा थे मेवार इज लोकेटेड राजस्थान तो ता विषय सब पूरा डिटेलिंग कहबी कहीं कौन ना अकबर दुख प्रकाश करते। तो एबे खाली मन रख अबुल फजल ताकू कौन बैटल देला ना बैटल ऑफ कमनौर खमनौर। तो 20 क्वेश्चन नादिर शाह अटैक्ड इंडिया एट द टाइम ऑफ व्हिच अमंग फॉलोइंग माने लेटर मुगल से किए थे ना मोहम्मद शाह से मुगल थे। नादिर शाह जानते हो पारस्यर राजा ओडिया पढ़ी आम पारस्यर राजा जी आसी मयूर सिंहासन चोरी कर नहीं तो सही कथा सब ये कही। ओके तो से सब यही कही आ कि नहीं तो से डिग्नेशन ऑफ द माने मुगल एम्पायर ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टेट ऑफ हैदराबाद बेंगल अवध वर एस्टाब्लिश्ड माने एस्टाब्लिश्ड इन द इंडिपेंडेंट किंगडम भाव एम सब जन्म नौते। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज सेटअप बाय द गुप्त रूलर किए कहाँ द्वारा ये ना कुमार गुप्त फर्स्ट। तो गुप्त साम्राज्य विषय भी पढ़िया गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त को कहीं आम फेमस रूलर को द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज द एस्टाब्लिश ऑफ नालंदा विषय कहुई ना बड़गांव बिहार 5th सेंचुरी होता यहाँ गोटे मन रख नालंदा बिहारटा नालंदार जो यूनिवर्सिटीटा वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भितर जाए। ओके तो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भितर आम भी पढ़ा तार सब कौन कौन क्यों मैंने आम इंडिया रोचे जीआई टैग कौन जोग्राफिकल इंडिकेशन ताको कहुए। ओके तो जीआई टैग आम ओडिशा रे क्यों हलदी को जीआई टैग पाई क्वेश्चन तो कंधमाल हल्दी आम ओडिशा रे जीआई टैग पाई। ओके हु वाज द माने पौर ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर बेले पौर किए थे आंसर है गवर्नर ऑफ सिटी व्हिच इज द ओल्डेस्ट माने डायनेस्टी इन इंडिया क्वेश्चन जदि पड़ो ताले किए ना मौर्य डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ द इंडिया। ओके तापर अर्थशास्त्र चाणक्य किए लिखते ना चाणक्य से अर्थशास्त्र गवर्नर ऑफ द सिटी को कौन कहते ना पौर। तो से भाया चंद्रगुप्त मौर्य के विषय कहुई दी वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया ही वाज टॉट एंड काउंसिल्ड बाय द फिलोसोफर चाणक्य। तो ये सब कहते तो इन द एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन अकाउंट्स चंद्रगुप्त इज रेफर्ड टू सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस एटा गोटे कौन अच्छी ताको रेफर करथिले चंद्रगुप्त मौर्य पद्मनस एंड चक्रवर्ती सम्राट ताको कहा जाए पद्मनस पद्मस्थान चक्रवर्ती सम्राट ताको कहा जाए। इन मिडाइवल स्टोन रिलीफ दिगांबर गोटे माने लिपिटा दिगांबर लिपि बा पिलिग्रिम साइट से कौन ना सर्ववेलगांव कर्नाटक रे से ताको खोजिथिले। इट हैज बीन द इंटरप्रेटेड बाय भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य।
इंटरप्रेटेड क्या द्वारा होता ना भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य बट एति जदि मन रख केवल एति मन रख क्या समय दिगंबर जो लिपिटा इंट्रोड्यूस होता ना चंद्रगुप्त मौर्य समय है। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट्स 5 6 7 8 8 उत्तर प्रदेश सब हाएस्ट मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करे। उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री द मैक्सिमम नंबर ऑफ द अदर स्टेट्स इट्स शेयर इट्स बाउंड्री विथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एज वेल एज दिल्ली। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश कैपिटल कौन? हरियाणार कैपिटल कौन? राजस्थान कैपिटल कौन? उत्तराखंड कैपिटल कौन? उत्तराखंड कौन ना डेराडून, हिमाचल प्रदेश शिमला, हरियाणा चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ कौन ना छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ये छत्तीसगढ़ भूले ये प्रिंटेड ना छत्तीसगढ़ सहित भी रोचे। देन झारखंड, बिहार एज वेल एज दिल्ली। ओके, द मोस्ट ऑफ जूट मिल्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन व्हिच माने व्हिच स्टेट? छत्तीसगढ़, वेस्ट बेंगल, आसाम, ओडिशा। तो आंसर है वेस्ट बेंगल। तार कलियुंगमा सॉरी मोर होनी प्रोनाउंसिएशन चमलुंगमा इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? एटा कौन कंट्री रे अवस्थित? इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत। तो आंसर है नेपाल। तो ये क्वेश्चन टा उठेबार माने माउंट एवरेस्ट विषय कही। माउंट एवरेस्ट ताको ये कौन ये सब नाटे कौन चमलुंगमा ये विषय कहती। तो आम इंडिया सब उच्चतम पर्वत श्रृंगर नाम है कौन ना K2 कंचनजंगा। वर्ल्ड है कौन ना माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट उच्चतम श्रृंग माने उच्चतम श्रृंगर नाम माने केते तार हाइटा केते थिला? पूर्व थिला 8848 मीटर, एबे हेई सेटा 8850 मीटर, 2 मीटर वृद्धि हेई। तो आउ कौन ना एतिकी ता विषय आउ माउंट एवरेस्ट विषय आस आहरी डिटेलेसन देखिया। Which among the following was not among the 7 member of drafting committee of Constituent Assembly? अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जीवी महाबलेकर। तो आंसर है जीवी महाबलेकर। तो जीवी महाबलेकर तो एमन कहते किए बट जीवी महाबलेकर किए? तो जीवी महाबलेकर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ लोकसभा माने लोकसभा प्रथम स्पीकर होते किए ना जीवी महाबलेकर। मन रखियो हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बॉडी? जीवी महाबलेकर। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो 7 जन मेंबर थे B.R. आंबेडकर इज द चेयरमैन, N. गोपाल स्वामी आयंगर, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला आउ माधवराव T.N. कृष्ण रामचारी। तो ओके मुझे तुमको गोटे प्रस्ताव पचार माने क्वेश्चन पचार हु इज माने गॉड माने किए संविधान सभा को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनी? तो जवाहरलाल नेहरू। ओके, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे कौन थिला? आम इंडिया रो प्रिएम्बल थिला। प्रिएम्बल विषय से उल्लेख करथिले। तो हु इज कॉल्ड मॉडर्न मनु? मॉडर्न मनु कहा को कहा जाए ना डॉक्टर के मुंशी, N. गोपाल स्वामी आयंगर, T. कृष्णमाचारी, डॉक्टर B.R. आंबेडकर। आंसर है डॉक्टर B.R. आंबेडकर। ओके, डॉक्टर B.R. आंबेडकर माने फेमसली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाज ब्रिलियंटली राइटर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। ये सब विषय तार कही आम मॉडर्न मनु कहू। आ इन व्हिच रीजनल माने रीजनल रूरल बैंक माने व्हिच ईयर रीजनल रूरल बैंक इन आवर कंट्री स्टार्टेड वर्क? 1975। The regional rural bank was established. The provisions RRB Act 1976 रे सॉरी 76 था 75 दे दीजिए। ओके सॉरी ये 75 होइछि ताको करेक्शन करी 76 करनेबे 76 सॉरी 76। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रूरल बैंक्स आर सेटअप इन द 2 अक्टोबर 1975 रे इतला बट आरआरबी एक्ट 1976 रे एटा रिफॉर्म इतला। ओके, तो देखंतु लॉर्ड राम बिलोंग टू फॉलोइंग इरा ऑफ युग त्रेताय युग रे लॉर्ड राम एटा हम गोटे माइथोलॉजी कॉन्सेप्ट ना निथिले माइथोलॉजिकल क्वेश्चन निथिले तो ता विषय हम आपन को कहि। ओके, तो सेहि भले हम आपन को जदी पचारछि जे द्वापर युग रे कहा को विषय कथा कहै छि ना कौन क्या विषय ना कृष्ण को विषय कथा कही। तो ये सब कथा माइथोलॉजी सेमती आम गोटे गोटे क्वेश्चन आनिया
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आमर जो स्पेशल टॉपिक थिला यूपीएससी ता ऊपर गोटे मोटिवेशनल क्विट फर्स्ट नहीं जीनियस इज 1% एंड 1% टैलेंट एंड 99% हार्डवर्क। तो यह ही थिबा दरकार गोटे एस्पिरेंट भितर जीनियस। तो ये कौन कही देखो आगे फर्स्ट मेनी एस्पिरेंट थिंक दैट ओनली दोज हैविंग इनबोर्न टैलेंटेड कम बिकम आईएएस ऑफिसर बट दिस नॉट ट्रू। इट इज ओनली विथ योर शेयर हार्ट you can succeed in CHSC civil services examination with only your presented and disciplined hard work you can completed that। जदि तुम भितर डिटर्मिनेशन थी हार्ड वर्क थी तुम जेकोसी एग्जाम को क्रैक कर पारियो बट तुम भितर प्रोसेसटा आउ तुम जो प्रोसीजियरटा ठीक हवा दरकार ओके। तो से तुम सक्सेस पाई पारियो। तो से भाया कथा सी कही माने आईएएस के भी इनबोर्न ही न था मु भाई जन्म होती माने आईएएस पाइबी ना तुम्हें जब तुम भितर माइंड सेट थी ना मु गोटे आईएएस हेबी देश पे सेवा करी गोटे एग्जीक्यूटिव माने ऑफिसर्स हेबी। तो यही सब तुम भितर टैलेंट थी दरकार ओके। तो इंडिया सब कौन आम इंडिया सब ओल्डेस्ट एग्जाम एंड वर्ल्ड टॉप सेकंड डिफिकल्ट एग्जाम भितर जाए आईएएस ओके। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंटेंट किए करे ना यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन कंटेंट करे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन लोकसभा आयोग कॉमनली एब्रिविएटेड यूपीएससी ही इज अपॉइंटेड ही इज रेस्पॉन्सिबल अपॉइंटेड द एग्जामिनेशन ग्रुप ए ग्रुप बी ओके। तो इट इज व्हाइल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज सेंटर पर्सनल एजेंसी ऑफ इंडिया ओके। तो ये मुझे कौन पर यहाँ कहला मुझे कहीदे। तो प्रत्येक वर्ष आम से दिन भी आपको कही जो सीजीएल अच्छी सीएचएसएल अच्छी एसएससी सेक्टर यूपीएससी सेक्टर में जी आमको पोस्टेसेस दरकार तो जो आमको आईएएस यही वर्ष 100टा आईएएस दरकार आउ तो सेमती से कौन करती ना पोस्ट पठाती क्या पाक ना यूपीएससी पाक भाई आमको ये आईएएस दरकार आईपीएस दरकार आमको तुम्हें एग्जाम करो बाछि नहीं कि आमको दे दियो। देन से कौन करती ना एग्जाम कराती तार स्टेजेस अच्छी प्रिलिम्स अच्छी मेन्स अच्छी एंड पर्सनालिटी टेस्ट अच्छी। तो सेमती से एज एसएससी हो कि यूपीएससी हो से ना एग्जाम करेंगी से प्रोवाइड करती पोस्ट माने जी नीड जी पोस्ट दरकार अच्छी प्रत्येक वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एसएससी सीजीएल हो सीएचएसएल हो कि यूपीएससी हो जी पोस्ट अच्छे से प्रोवाइड कर दिखती इन एग्जाम थ्रू रे। तो एग्जाम भी टफ कराए सी सेमतिया बाछिकी नहीं तुमको प्रेशर दिए जमती तुम्हें आग को गोटे बहुत बड़ कंट्री माने भारत को जमती संभाली पार एग्जीक्यूशन ठीक से डिसीजन नहीं पार। तो ताहारी सब उपरे से तुमको से कौन कराई ना ट्रेंड कराई थाए। तो तार सब कौन रोचे देख ना 1 अक्टोबर 1926 94 इयर एगो रे सेटा कौन होता ना कौन 1 अक्टोबर 1926 रे कौन ना प्रेसिडिंग एजेंसी भाव जोग देता ओके। फास्ट कही यहाँ आम इंडिया गोटे ओल्डेस्ट एग्जाम ओके। देन देख ना फेडरल सर्विस कमिशन ता फास्टली कहला देन पब्लिक सर्विस कमिशन कहला ना यहाँ यार हेडक्वार्टरटा कौटी अच्छी ना दौलपुर हाउस शाहजहां रोड न्यू दिल्ली रे अच्छी। तार चेयरमैन किए अच्छे ना प्रदीप कुमार जोशी अच्छा तार चेयरमैन ओके। तो तार यहाँ हिस्ट्री अच्छी आपको पीडीएफटा देले आप देखीदेवे। द लेड ऑफ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमिशन ऑन 1 अक्टोबर 1926 चेयरमैनशिप ऑफ सर रोस बार्कर होते आम कौन ना मॉडर्न हिस्ट्री रे क्यों माने रूलर बा क्यों लीडरटा होची आईएएस एग्जाम क्लियर करथिले कोई पारियो सुभाष चंद्र बोस आईएएस एग्जाम क्लियर करथिले से सिविल सर्विसेस जोग देथिले तापर से ताकू माने बाहर हेथिले ता सुभाष चंद्र बोस विषय पढ़िबा हैला ओके फ्यूचर रे केबे पढ़िबा। देन देखो ना दैट फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन बिकम यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवेम्बर जनवरी 50। द आर्टिकल ए माने 315 रु 325 भितर रोचे पार्ट एक्स आई भी कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल सर्विस माने अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स ताको प्रोवाइड करछि एतकी आर्टिकल भितर रोचे हला। तो देखो एटा भी कही कौन ना इट इज बोथ ऑटोनोमस एंड फ्रीडम बॉडी एटा मन रखियो। देन अपॉइंटमेंट किए करे ना एज पर आर्टिकल 316 द चेयरमैन ऑफ अदर मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ ऑफिस द चेयरमैन बिकम वैकेंट द ड्यूटीज शैल बी परफॉर्म्ड बाय वन ऑफ द अदर मेंबर ऑफ कमिशन माने कमिशन एज द प्रेसिडेंट मे बी अपॉइंटेड पर्पस ओके। तो तार विषय से कही
सेमती देखी दिंतु लास्ट को मुझे कौन ना रिमूवल एंड सस्पेंशन केमती हुए मुझे देखी ना एज पर आर्टिकल 317 द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी ओनली रिमूव्ड बाय द ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट और रेफरेंस बीइंग मेड। एटा बहुत माने बहुत प्राविधान सेमती कि बाहर करें कहीं से गोटे एत बड़ रेपुटेड पोस्ट रे अच्छा केवल कौन ना मिसबिहेवियर और क्या द्वारा हम ना आइदर सुप्रीम कोर्ट एंड आइदर प्रेसिडेंट। ओके आम इंडिया जो मैंने बड़ बड़ अच्छा से ही बड़ बड़ रूलर्स मैंने अच्छा जो माने प्रेसिडेंट हो आईसी माने इंडियन कोर्टर जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हो सेमतिया लोक मैंने। ओके तो सेमतिया द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ कमीशन इफ शी हैज द एडजर्ड एंड इंसॉल्वेंट engage and during the term of the office in any paid employment outside the duty of their office जदि कोठी रिश्वत नथो in the opinion of the president unfit to continue the office of the reason for infirmity of mind or body। okay then chairman of any other member cannot hold on office of profit and otherwise the sale of माने से कौन सी ऑफिशियल प्रॉफिट रे जोंटी माने कोन कार्य करा जाय सेठी सेमतिया से नथिवो है तो फंक्शन विषय कही तो फंक्शनटा देखी दिंतु लास्टली एज पर आर्टिकल 320 इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विस ऑफ द यूनियन इट शेल बी असिस्ट 2 और मोर स्टेट्स इट रिक्वेस्ट सो इनफॉर्मिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम टू जॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सर्विसेज। ओके तो यही समय मुझे आपको आउ किसी डिटेल्स दे दूची तो जमती मुझे आपको कही जे प्रिलिम्स हुए मेंस हुए इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट हुए माने प्रकृति में प्रिलिम्स आउ मेंस सॉरी आमर कौन ना मेंस आउ इंटरव्यू मिसिकी 2050 मार्क एग्जाम हुए तो आज पर्यटन केबे आईएएस 60% रिजल्ट जाएनी। ओके तो सब बेले अंडर द 60% रिजल्ट रुहे तो तुम्हें जो आईएएस रे सिलेक्शन हो डायरेक्ट तुमको कलेक्टर बा जेकोसी पोस्ट रखा होनी तुम्हें लबासना को जीव लबासना माने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल माने आईएएस एकेडमी। ओके सेठी तुम्हें एज ए प्रोबेशनर्स ही रही तुम्हें 18 मास ट्रेनिंग नब तुमको एज ए आईएएस ऑफिसर कहबनी एज ए प्रोबेशनर्स कहब जो तुम्हें प्रोबेशनर्स है तुमको एज ए गोटे माने डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट कलेक्टर कि माने ये सब पोस्ट तुमको रखा बट एटा सब ग्रुप है बट तुम्हें असिस्टेंट कलेक्टर ही रही कलेक्टर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम तो यही सब तार प्रोसेस रही। ओके तो यही सब तार आउ कौन ना तुम कार्यकाल जदि तुम गोटे चेयरमैन हो यूपीएससी रे चेयरमैन हो कि यूपीएससी रे जोग दौच जहाँ कौन तुमको जेकोसी तुम अथराइजेसन एग्जीक्यूटिव जोग दौच तुम कार्यकाल 6 वर्ष कि 65 वर्ष रोचे तो 6 वर्ष 65 वर्ष माने मुझे तुमको बुझे दूसरी देख जो सपोज तुम यूपीएससी रे चेयरमैन किए प्रदीप जोशी अच्छा। ओके प्रदीप जोशी निजर 56 वर्ष बेले यूपीएससी रे चेयरमैन हेले धरी नियो तापर 6 वर्ष कही कार्यकाल 6 वर्ष जदि 6 वर्ष मिसई दियो 56 युक्त 6 62 वर्ष से 62 वर्ष माने कार्यकाल सरी जाऊँगी से रिटायरमेंट नहीं ने जदि तुम्हें धर जो से प्रदीप कुमार जोशी जदि जोग दौरान कौन ना 62 वर्ष बयस जोग दौरान ना रिटायरमेंट केबे हम ना 6 वर्ष हेनी 65 वर्ष ही रिटायरमेंट हम तो सही कथा से कही। ओके तो यह ही रोचे यूपीएससी प्रोसीडियर यह हूँ तार माने कौन ये और सैलरी तो जानी तो मिनिमम ग्रेड पे है कौन ना 16,000 ग्रेड पे सैलरीज रुहे आ मिनिमम स्टार्टिंग तो इन हैंड तुम्हें पाई 60,000 टू एभव तो मिनिमम तुम स्टार्टिंग तो सब अलाउंस का मिसिक 87,000 पाखापाखि आसी जाए तो कहते गले यहाँ इंडिया प्रेस्टिजियस जॉब तो जहाँ को पाइबापी बहुत प्रत्येक वर्ष मिनिमम 15 ରୁ 16 लक्ष छुआ एग्जाम दिखती निज ड्रीम को अचीव करने तो समस्ते से निज ड्रीम को अचीव कर लगी पड़ और किसी करके देखाओ। तो आज क्लास एतिकी तो नेक्स्ट क्लास रे हमें मॉडर्न हिस्ट्री किसी न्यू टॉपिक्स एंड न्यू माने केमतिया मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है ब्रिटिशर्स मान रूल केमतिया स्टार्ट है ताहार किसी क्वेश्चन विथ सम स्पेशल थ्योरीज नहीं आसी भावी तो आपण मैंने सपोर्ट करूँ सब्सक्राइब करूँ प्रमोट करूँ लाइक करूँ और आपण मैंने मत एमती सपोर्ट कले मुझे आग को थ्योरी क्लास आनी और भावी जी स्पेशल पर्सन्स अच्छा जमती महात्मा गांधी हो भगत सिंह हो मदन मोहन मालवीय हो BR आंबेडकर हो जहाँ भी भगत माने भगत सिंह सहित राजगुरु हो जहाँ को भी धरनी हो गोपाल कृष्ण गोखले हो सुभाष चंद्र बोस हो माने लाल बहादुर शास्त्री हूँ जी भी जिते बड़ बड़ आम इंडिया पर्सनालीटी वर्ल्ड पर्सनालीटी भी दे विंस्टन चर्चिल जे कहले थर जो आमर कौन
जॉर्ज कैनेडी जिते जन सब पर्सनालीटी अच्छा मोरालिटी कौन रोचे बायोग्राफी कौन रोचे से केमती लाइफ रे उन्नति होती जो माने कौन सब मोराल्स रोचे ताकू ही आम गोटे क्लास रे आनिबा जस्ट सेटा किसी शॉर्ट टर्म क्लास हो माने जस्ट 5 to 6 मिनट 10 मिनट्स देवे तो से क्लासटा सरीज बट से किसी शिक्षा पाइबे जीवन शैली जीवन में कौन कौन इंपोर्टेंट सब घटना मान घटी जाता तो यही सब विवेकानंद विषय श्रीमान रामकृष्ण परमहंस विषय सब आम क्लास आणबू तो आपण मान सपोर्ट थी दरकार देन एतिकी तो सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु एंड नोटिफिकेशंस माने ऑन करंतु एवं आमर चैनल्स वेल माने एसएससी साइंस स्टडी क्लासेस को प्रमोट करंतु ओके तो ऑल द बेस्ट थैंक्स बाय सी यू नेक्स्ट क्लास एंड जय जगन्नाथ जय हिंद एंड वंदे मातरम।